So today we are going to discuss regarding the psychosurgery. So already we have discussed about electroconvulsive therapy and other drugs. So next part is the psychosurgery. And what do we mean by the psychosurgery? A surgical interventions. The first operation was performed in the 1936 by the Egos Moniz. It was known as standard prefrontal leucotomy. Standard prefrontal leucotomy. It was known as the surgical intervention. Surgical intervention जो होता है कि if any इंट्राक्रेनियल प्रेसिस राइजेस, जो इंट्राक्रेनियल प्रेसिस होता है वो राइजेस होता है, या इफ एनी ट्यूमर इज प्रेजेंट एनी केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन or any particular where these the nerve endings are not proper coordinating to supply the neurotransmitter from one neuron to another neuron, so there may be one of the surgical procedure we are doing here. So according to that Egos Moniz in 1936 that operation was performed and it was known as standard prefrontal leucotomy. Now we have to move on the indication. What are the indications we can go for the psychosurgery? And what are the indications? First indication is a severe psychiatric illness. यदि किसी पेशेंट को सीवियर साइकेट्रिक इलनेस होती है, if any psychological problems is arise in the severity of the illness, in the particular conditions when the person is having the suicidal or homicidal ideas and the person is going to imbalance in the particular environmental situation, so that severe psychiatric illness may be developed and the mental activity are suppressing and the mental activity are going to the severe illness. So chronic duration of illness of about 10 years. यदि chronic डेवलप हो जाता है, यदि पर्सन इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है किसी भी मेडिकेशंस के द्वारा या किसी भी थेरेपी के द्वारा और उसको 10 साल से अधिक हो जाता है या 10 साल तक हो जाता है, तो दैट इज अ कंडीशन इज बिकम क्रॉनिक. सो उस कंडीशन में प्रीफ्रंटल ल्यूकोटोमी सर्जरी होती है. परसिस्टेंट इमोशनल डिस्ट्रेस, जो पर्सन बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में रहता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होती है, तो उस कंडीशन में भी हम इस सर्जरी को कर सकते हैं. देन फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू ऑल अदर थेरेपीज, में द फेलियर ऑफ द ड्रग्स और अदर टाइप ऑफ द थेरेपीज, देन दे मे गो फॉर दिस टाइप ऑफ सर्जरी. हाई रिस्क ऑफ द सुसाइड, and the person is having the suicidal or homicidal tendency or behavior, that may also go for the psychosurgery. Now is the side effect. What are the side effects we can see in the psychosurgery? Person should have the apathy after the surgery, apathy, the lack of interest, lack of initiation in the environment, then emotional flatness should be there, slight euphoria, then pleasant, person is likely to look slight pleasant, so that is a slight euphoria. Loss of judgment, inertia. Inertia is one of the condition is known as inability to move spontaneously. Inability to move spontaneously, जो व्यक्ति धीरे धीरे नहीं घूम सकता, स्पॉन्टेनियसली नहीं घूम सकता या तेज नहीं घूम सकता, केवल एक ही जगह वो खड़ा रहता है, फिक्स पोजीशन होती है, स्टूपर होता है, दैट कंडीशन इज नॉन एज इनर्शिया. लैक ऑफ ड्राइव, जिसके अंदर एक ड्राइव सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है, जहाँ पर पर्सन का मोटिवेशन तो अधिक होता है, इंक्रीज होता है, बट ड्राइव इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, दैट इज नॉन एज लैक ऑफ ड्राइव. वी कैन गो फॉर द this side effect may be developed after the surgery. Then epilepsy, when the patient is having the epileptic seizure, so they may also have the probably side effect. Then what are the major surgical procedure? Major surgical procedure के अंदर कौन कौन से surgical procedure करते हैं यहाँ पे? Stereotactic subcaudate ectotomy, stereotactic limbic leucotomy, stereotactic bilateral amygdalotomy. So these are the some of the major surgical procedures we are doing in the psychosurgery. Stereotactic होता है, subcaudate. These are the some of the major surgical procedures they are doing in the psychosurgery. Then this is the psychosurgery. Next is we have to go for the chemical convulsive therapy. Chemical convulsive therapy जो है, after the convulsion therapy there will be the chemical convulsive therapy, that is a chemical therapy, and chemical convulsive therapy is given in the form of endocolon hexafluorodiethyl ether. There are two drugs, endocolon hexafluorodiethyl ether. These are the two drugs we are using in the chemical convulsive therapy. It was discovered in the 1956 by the
स्पीयर्स एंड नीले 1956 डिस्कवर्ड किया था स्पीयर्स ने, नीले ने। एप्लीकेशन ऑफ दिस थेरेपी अगेंस्ट द मिसकंसेप्शन टुवर्ड्स द ईसीटी। हेलो, हाँ बताइए। someone is continuously moving me. रिमूव कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि रिमूव कर रहा है। एक मिनट में थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ इस चीज़ को, पर मैनेज नहीं हो पा रहा है। एक मिनट मैं देख सकता हूँ कि बार बार कंटिन्यूसली रिमूव कर रहा है। चलो देखते हैं। So we are moving on the endoclone. This is one of the chemical convulsive therapy, endoclone hexafluorodiethyl ether. It was discovered in 1956 by the Spears and Neely. And application of this therapy against of the misconception toward the ECT. जो ECT के against में misconception रहता है कि ECT से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये होता है, तो misconception about the ECT, and we can give the this chemical convulsive therapy to those patients, those who are having the misconception towards the ECT. Then again, what are the indications we can give the chemical convulsive therapy? Acute और chronic depression. Chronic depression, severe depression के अंदर भी हम ECT दे सकते हैं, but misconception होता है ECT के against में, तो इस condition में we can give the chemical convulsive therapy. Schizophrenia reaction, when the patient is getting any schizophrenia reaction, when the disturbance in the cognitive and affective process, there may be the schizophrenic symptoms. So schizophrenia reaction may be developing. Then paranoid cases, when the paranoia means when the person is become suspicious and sleepy, जो person बहुत ज़्यादा sleepy रहता है, lazy होता है, हर समय लेटा रहता है, that is known as paranoid cases. साइकोन्यूरोटिक डिप्रेसिव रिएक्शन, साइकोन्यूरोटिक डिप्रेसिव रिएक्शन का मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर किसी भी पर्सन के अंदर डिप्रेशन के बाद साइकोन्यूरोटिक कंडीशंस अपीयर होती है। साइकोन्यूरोटिक डिप्रेसिव रिएक्शन से अपीयर होती है, कब होती है कि जब डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन के बाद साइकोन्यूरोटिक का मतलब होता है नंबनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, इरेगुलर सेंसेस होते हैं, इनवॉलंटरी सेंसेस होते हैं, तो उस तरह के ये होते हैं जिसमें पर्सन को पता नहीं चलता है कि उसके ऊपर क्या क्या सेंसेशन जो है दे आर नॉट शोइंग द प्रॉपरली ऑन द स्किन. So psychoneurotic condition is also developing. Many depressive reaction, many depressive psychosis also is one of the indications can be given to the chemical convulsive therapy. जिनका mania होता है, depression होता है, depression is a severe condition form of depression, severe form of the mania. If electricity fails at the time of ECT, जब ECT देते हैं तो उस टाइम electricity fail हो जाती है, तो we can give the chemical convulsive therapy. Even after the ECT, the other therapies, if the schizophrenia symptoms are not subsiding, if we are giving any ECT or any type of other drugs, so that if the patient is not getting any particular relief from these therapies, so that we can give this chemical convulsive therapy for the alternative therapy as a alternative therapy. So these are the some of the indications we can give the chemical convulsive therapy. Then now we have to go for the contraindication. In the contraindication we can see the upper respiratory tract infection, kidney, liver and severe disease. हम इन conditions में patient को chemical convulsive therapy नहीं दे सकते. We cannot give the chemical convulsive therapy to those particular disease like upper respiratory tract infection, URTI, kidney, liver and severe disease. Then pre-treatment preparation. Pre-treatment preparation के अंदर complete physical examination we are doing, mental status examination we are doing, complete blood count we also we are doing, urine analysis we are doing, X-ray, chest, EEG, electroencephalography also can be
go for the particular pre-treatment preparation. Withheld means psychotropic drugs जो होती है 48 hours before the endocrine administration. Endocrine administration करते हैं उससे 48 घंटे पहले हम उसको psychotropic drugs को क्या करते हैं, withhold कर देते हैं. Cigarette and fluids are 24 hours before the treatment. When we are administering the endocrine administration, then we can avoid the patient to take the cigarette and fluids within 12 hours. Then doses of endocrine की जो डोज होती है वो होती है आपकी फर्स्ट ट्रीटमेंट हम देते हैं 1.5 cc एंड एडिशनल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन 1.25 cc. हम जो मिनिमम डोज होती है वो होती है 1.5, उसके बाद हम एडिशनल इसमें ऐड करके दे सकते हैं 1.25 cc, इसके साथ हम और ऐड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गिव मोर देन दैट. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर 3 times a वीक, मतलब एक वीक में 3 बार जो ओपीडी बेसिस पे होता है. जो पेशेंट ओपीडी बेसिस पे होता है उसको 3 बार एक वीक में देते हैं. 5 टाइम एक वीक में जो एवरेज पीरियड ऑफ टाइम में जो आईपीडी बेसिस पे होता है. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ केसेस वर डिस्चार्ज विद इन द 2 to 3 वीक्स आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट के टर्मिनेशन होने के बाद 2 से 3 वीक के अंदर हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं. दैट इज द frequency and treatment. Then techniques. What are the techniques we have to follow in the chemical convulsive therapy? 2 physicians and 1 nurses will be administered for the treatment. मतलब जो होती है 2 फिजिशियंस की ज़रूरत पड़ती है, 1 नर्स की ज़रूरत पड़ती है इसको ट्रीटमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए. Then 10 cc of the 1% of injection Brivital एक इंजेक्शन होता है जो इसके अंदर पर्टिकुलर एनेस्थेटिक एजेंट होता है. जो 10 cc के अंदर हम क्या करते हैं 1% ब्रिवेटाइल जो लगाते हैं, आईवी देते हैं, जो शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होता है एट द रेट ऑफ 1 cc पर 5 सेकेंड. मतलब 1 cc 5 सेकेंड के अंदर हम क्या करते हैं इन्फ्यूज़ करते हैं. मतलब 1 cc जो है वो 5 मिनट के अंदर जानी चाहिए. ठीक है. एक शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होता है ब्रिवाइटल जो इंट्रावीनसली देते हैं. जो 10 cc ऑफ नॉर्मल सलाइन के अंदर हम 1 cc ऑफ इंजेक्शन ब्रिवाइटल ऐड करते हैं, जिसके बाद हम उसका इन्फ्यूजन रेट 1 cc रखते हैं. 1 cc to 1.5 cc क्विलिसन होता है जो सक्सिनिल कोलिन होता है. ये एंटी मसल्स रिलैक्सेंट होता है. ये मसल्स पैरालाइजिंग एजेंट होता है बाय गिविंग द फॉर मसल्स रिलैक्सेशन. मसल्स रिलैक्सेंट्स होता है जो हम क्विलिसन सक्सिनिल कोलिन हम पेशेंट को 1 cc to 1.5 cc देते हैं. 0.8 to 10 mg ऑफ एट्रोपिन सल्फेट. एट्रोपिन सल्फेट का काम क्या है कि ये सिक्रीशंस को कम करता है. ठीक है. रेस्पिरेटरी पासेज से जैसे कि सलाइवा आने लगती है, पेशेंट जब बेहोश होता है तो एट्रोपिन सल्फेट उसमें हेल्प करता है कि सिक्रीशंस को कम करता है, जिससे कि जो चॉकिंग होता है, गले में चॉकिंग होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, रेस्पिरेटरी पासेज ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज उसकी वजह से चॉकिंग की वजह से होता है. जो सिक्रीशंस आ रहे हैं कंटिन्यूसली फ्रॉम द माउथ से और रेस्पिरेटरी ट्रैक से, तो उससे क्या होता है चॉकिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं. तो उससे हम क्या करते हैं एट्रोपिन सल्फेट हम इंट्रामस्कुलरली हम उसको 0.8 to 10 mg हम दे सकते हैं. उससे भी पेशेंट को कार्डियक फेलियर से भी हम बचा सकते हैं. सॉफ्ट प्लास्टिक ओरल फेरेंजियल एयरवे लगाते हैं, जिससे कि पेशेंट को अडल्ट साइज प्रॉपर एयरवे मेंटेन कर सके. देन ए वेपोराइजर कंटेनिंग द एंडोक्लाइन अटैच टू द 5 लीटर रबर बैग. एक प्रकार से क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेपोराइजर होता है. उसके अंदर वेपोराइजर जो कंटेन है, वेपोराइजर के अंदर हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर हम 5 लीटर रबर बैग के चैम्बर के साथ एंडोक्लोन अटैच एक अलग से चैम्बर होता है जिसमें हम एंडोक्लोन डाल देते हैं और उसको हम ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देते हैं. और जिससे पेशेंट को फेस मास्क से कनेक्ट करने के बाद उसको उसका जो बाल्ब है वो उसको खोल देते हैं और धीरे धीरे पेशेंट को हम क्या करते हैं कि नोज और माउथ पर हम उसको मास्क को लगा देते हैं, जिससे कि पेशेंट का जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होता है. हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम. मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बोलना. आप कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं नहीं कर सकता अभी बात.
So vaporizer containing the endoculon attached to a 5 लीटर रबर बैग, जो 5 लीटर रबर बैग होता है नीचे की तरफ, ठीक है, उसके ऊपर एक चैम्बर होता है जो एंडोक्लोन होता है, उसके अंदर हम एंडोक्लोन का सॉल्यूशन उसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, 5 लीटर का जो रबर बैग होता है ऑक्सीजन का, उसको पुश करते हैं या उसको अटैच कर देते हैं, पुश करते जाते हैं, तो उसका जो ऑक्सीजन होता है वो एंडोक्लोन के साथ मिक्स होकर के और वो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता रहता है। तो उससे क्या होता है, पेशेंट को रिलीफ होता है। द क्लाइंट चेन इज हेल्प अप, चेन को हम ऊपर उठा देते हैं। उसके बाद जो कंट्रोल वाल्व होता है उसको ओपन कर देते हैं, रबर बैग को जेंटली कंप्रेस करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन के साथ एंडोक्लोन मिक्सचर लंग्स में जाता रहता है 3 सेकंड के अंदर। द क्लाइंट फिर उसके बाद उसको एक्सेल कर देता है बैग के अंदर। सो 1 से 9 कंप्रेशन हम करते हैं। जो 1 से 9 कंप्रेशन करने के बाद कन्वल्सन्स प्रोड्यूस होता है जो 15 सेकंड के अंदर होता है। एंडोक्लोन जो एब्जॉर्ब होता है इन द ब्लड के अंदर, और जो बाद में क्या होता है कि जब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है, ले लिया जाता है। उसके बाद वो ब्रेन में सर्कुलेट होता है और 40 सेकंड के अंदर, और जिससे कि वहाँ पर कन्वल्सन्स प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं ग्रैंड माल एपिलेप्टिक सीजर डेवलप होता है। Then convulsion will start with a small myoclonic jerk, tonic, इसके अंदर टॉनिक और क्लोनिक जर्क होते हैं। माइक्लोनिक जर्क जो है followed by the short intense tonic and clonic phase, then prolonged clonic phase lasting 30 to 90 seconds is होता है। जो 15 से 30 तो होता है टॉनिक वाला, और क्लोनिक होता है 30 से 90 सेकेंड। इस तरह के जर्क जो है वो डेवलप होते हैं जिसको कहते हैं ग्रैंड माल एपिलेप्टिक सीजर। उसके बाद रेस्पिरेटरी रिकवरी जो होती है वो 10 से 15 सेकंड के अंदर होती है आफ्टर द एंड फेज ऑफ द क्लोनिक फेज, दैट इज बेस्ड ऑन द क्लूसन एंड एंडोक्लोन एडमिनिस्ट्रेशन। द सॉफ्ट कन्वल्शन विल बी प्रोड्यूस्ड विच में बी इंडिकेटेड बाय द ट्विचिंग ऑफ द आईलेट्स। जो आईलेट्स होती हैं वो टीचिंग करने लगती हैं, इससे सॉफ्ट कन्वल्शन प्रोड्यूस होता है। हम क्या होते हैं, कफ मेथड के द्वारा भी हम उसके जो कन्वल्शन होते हैं उनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आँखों की जो आईलिड्स होती हैं वो जो टीचिंग करती है, उसका मतलब है कि कन्वल्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं उसकी आईलिड्स की तरफ, और हम उनके कन्वल्शंस को चेक करते हैं। इसके बाद डोजेस ऑफ एंडोक्लोन विल बी वेरिड टू द reduce the great intensity of the convulsion. Schizophrenia case multiple seizure may be required. यदि schizophrenia के केसेस हैं उनके अंदर मल्टीपल सीजर का रिक्वायरमेंट होता है। ग्रैंड माल एपिलेप्टिक सीजर्स जो होते हैं वो ज़्यादा आने चाहिए यदि schizophrenic पेशेंट है, जब हम किसी पेशेंट को एंडोक्लोन दे रहे हैं, ठीक है, कन्वल्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके अंदर schizophrenia केसेस के अंदर सीजर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस आर टेक्निक्स यू हैव टू फॉलो। टेक्निक्स के अंदर फर्स्ट क्या है, इसमें 2 फिजिशियन होते हैं, एक नर्स होती है जो हेल्प करते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें 10 cc जो इंजेक्शन होता है नॉर्मल फ्लैन, उसको 1 इंजेक्शन ब्रिवाइटल के साथ हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। ब्रिवाइटल जो होता है ये शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो हम इसका 1 cc 5 सेकेंड के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। उसके बाद हम देते हैं क्यूलिशन। जो क्यूलिशन होता है सक्शनल कोलिन होता है जो मसल्स रिलैक्सेंट होता है, जो IV हम उसको दे सकते हैं जिससे कि मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जिनकी जो डोज होती है वो 1 cc टू 1.5 cc हम देते हैं। 0.8 to 10 mg ऑफ एट्रोपिन सल्फेट दे सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एनी रेस्पिरेटरी पासेस के अंदर कोई भी चॉकिंग कर रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है बिकॉज ऑफ सिक्रेशंस, देन वी कैन प्रिवेंट दैट एंड वी कैन also save the life from the cardiac failure. The soft plastic oral pharyngeal airway also inserted in the oropharyngeal part. Then vaporizer एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंडोक्लोन अटैच्ड 5 लीटर रबर बैग होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और एंडोक्लोन का एक चैम्बर होता है जिसमें एंडोक्लोन कंटेनिंग पार्ट होता है जो मैंने 10 cc विद 1 cc और ब्रिवाइटल बताया था आपको। उसके साथ हम अलग से वेपोराइजर के अंदर एंडोक्लोन अटैच कर देते हैं जो 5 लीटर रबर बैग के साथ होता है, मिक्स कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन को अटैच कर देते हैं हम फेस मास्क से। उसके बाद वाल्व को सेट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद फेस मास्क को हम प्रॉपरली टाइटली नोज एंड माउथ पर हम लगा देते हैं जिससे कि वो लीकेज जो है वो प्रॉपरली ना हो।
इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि जब वो पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर हो जाता है नोज और माउथ उस मास्क से, तो हम धीरे धीरे हम क्या करते हैं कुछ जो बाल्ब होता है उसको ओपन कर देते हैं और रबर बैग जो होता है उसको जेंटली कंप्रेस करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन के फोर्स के द्वारा एंडोक्लिन मिक्सचर लंग्स में जाता है 3 सेकेंड के अंदर। द क्लाइंट उसके बाद फिर उसको एक्सेल कर देता है, पेशेंट इनहेल करता है और एक्सेल करता है। इसमें 1 से 9 कंप्रेशन की जरूरत पड़ती है जो कन्वल्सन्स आते हैं विद इन द 50 सेकेंड्स के अंदर। एंडोक्लोन एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर, धीरे धीरे वो सीएनएस में जाता है, सीएनएस से सर्कुलेट वो ब्रेन और ब्रेन के में सर्कुलेट होता है, अराउंड 40 सेकेंड का टाइम लेता है और जिससे कि कन्वल्सन्स प्रोड्यूस होते हैं। कन्वल्सन्स स्टार्ट होते हैं विद द, आपको मैंने 2 कंडीशन बताई थी, मायोक्लोनिक फेज। मायोक्लोनिक फेज के अंदर आपकी टॉनिक और क्लोनिक फेज होती है। टॉनिक के अंदर आपकी 15 to 30 सेकेंड्स होता है और क्लोनिक के अंदर जो फेज होती है वो 30 to 90 सेकेंड होती है जो कन्वल्सन्स को प्रोड्यूस करती है। इसके बाद रेस्पिरेटरी रिकवरी जो हम है वो चेक करेंगे 10 to 15 सेकेंड के अंदर जब क्लोनिक फेज एंड हो जाती है। ये डिपेंड करता है आपका क्विलेशन और एंडोक्लिन एडमिनिस्ट्रेशन पर। The soft convulsion will be produced which may indicated by the, हम सॉफ्ट कन्वल्सन को कैसे हम पता लगा सकते हैं, जब उसकी आंखें ट्यूचिंग करती हैं पेशेंट की तब हम उससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद है कि जो एंडोक्लिन है उसकी जो ग्रेड इंटेंसिटी है देने के बाद पेशेंट की सीजोफ्रेनिया जो केसेस हैं उन सीजोफ्रेनिया केसेस के अंदर मल्टीपल सीजर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। दिस इज नोन एज केमिकल कन्वल्सिव थेरेपी। नाउ क्लाइंट आफ्टर द ट्रीटमेंट, मतलब क्लाइंट को हम ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, एज सून एज द पेशेंट स्टार्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, जब वो रिकवरी हो जाता है एनेस्थीसिया से तो क्या होता है धीरे धीरे वो ब्रीथ करता है नॉर्मली एंड उसके बाद वो अपने उस रूम में चला जाता है जहाँ पर वो, जिसको हम कहते हैं रिकवरी रूम, यू कैन शिफ्ट टू द रिकवरी रूम एंड ही विल अवेकन विद इन द 2 to 15 minutes. Then remove the fear of the patient and offer the food within half an hour of the awakening. पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं रिकवरी रूम के अंदर, ठीक है। वो जब वो ब्रीथ नॉर्मली करने लग जाता है उसके बाद उसके फियर को रिमूव करते हैं। फियर को रिमूव करने के बाद हम उसको बाद में फूड ऑफर करते हैं आधा या 1 घंटे के बाद। देन साइड इफेक्ट क्या है इसके, जो केमिकल कन्वल्सिव थेरेपी होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट है आपके नोजिया, पेशेंट को नोजिया होने लगता है, गिडीनेस होने लगती है, ठीक है। यदि हम प्रत्येक ट्रीटमेंट से पहले, ठीक है, आईवी कॉम्पासिन यदि आईएम दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो हमें देना चाहिए क्योंकि पेशेंट को नोजिया की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, कॉम्पासिन एक एंटीडोट के रूप में हमें उसको आईएम हम दे सकते हैं। द नाइटमेयर होता है, इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील होता है। स्क्रीमिंग व्हेन दे अवेक, जब वो जागते हैं, जब वो कॉन्शियस हो जाते हैं, जब उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं। पोस्ट कन्वल्सन हेडेक्स होते हैं, हेडेक हो जाता है, मतलब कन्वल्सिव थेरेपी आने के बाद, कन्वल्जन्स आने के बाद पेशेंट को हेडेक डेवलप होता है। तो दीज आर द सम ऑफ द साइड इफेक्ट वी कैन सी आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द chemical convulsive therapy. So next is the abrasion therapy. Abrasion therapy will discuss in the later on the next class.